Dear students, in the last video lecture I discussed different terms associated with economics of power generation. In this video lecture I am going to discuss some numerical questions on the topic economics of power generation. So there are 4 questions written on the board. We will discuss one by one. Let's see the first question. In the first question it is written that a thermal power plant has a connected load of 50 megawatt. It means you have a thermal power plant. Let's come to the solution of the question. It is given that you have a connected load of 50 megawatt. So let's write connected load, it is equal to 50 megawatt. Second thing is given that and a maximum demand of 30 megawatt. So write here maximum demand of 30 megawatt, and it is also given that total 615 into 10 to the power 6 units are generated in a year. तो दिया हुआ है यहां पर एनर्जी जनरेटेड per year. It is given as 615 into 10 to the power 6 units. 615 into 10 to the power 6 units. So let's see. They are asking two things. One is demand factor and second thing is load factor. So first we have to calculate demand factor. So to calculate demand factor, we will write the formula of demand factor. So what is the formula of demand factor? Demand factor is nothing but maximum demand. It is nothing but maximum demand upon connected load. Maximum demand upon connected load. So what is the maximum demand here? The maximum demand is 30 megawatt and connected load is 50 megawatt. So it will be 30 divided by 50. So your answer is 0.6. Your answer is 0.6. So this is the answer of first question. Second, next they are asking you to find load factor. So what is the formula of load factor? Load factor is equal to you have to write average load. You have to write average load divided by maximum demand. For the load factor you will write average load divided by maximum demand. So here you see that average load is not given to you. Instead of giving average load, they have given you that in a year total 615 into 10 to the power 6 units of electricity are consumed, are generated. तो यहां से अगर आप एवरेज लोड कैलकुलेट करना चाहें तो एवरेज लोड क्या हो सकता है? आपका जो यहां पर दिया हुआ है 615 into 10 to the power 6, तो यहां पर अगर इसे आप टोटल 1 ईयर यानी 365 डेज इंटू 24 यानी टोटल 8760 आवर्स से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये आपको एवरेज लोड मिल जाएगा. ये मैं कल के लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बतलाया था. तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा? आप अगर एवरेज लोड देखें क्या होगा? 615 इंटू 10 टू द पावर 6, 615 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या डिवाइड करना पड़ेगा? 8760. 8760 क्या है कि टोटल 1 ईयर में टोटल 8760 आवर्स होते हैं इंटू यहां पर मैक्सिमम डिमांड क्या है? यहां पर अगर देखें आप मैक्सिमम डिमांड को तो मैक्सिमम डिमांड आपको दिया गया है हियर द मैक्सिमम डिमांड गिवन इज 30 मेगावाट. तो यहां पर देखिए अब यूनिट कन्वर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. Why unit conversion is important? Here you see that the unit of energy will be what? The unit of energy will be nothing but kilowatt hour. तो यानी 615 into 10 to the power 6 जो दिया गया है ये किलोवाट में दिया गया है. किलोवाट आवर एंड डिवाइडेड बाय आवर आप करेंगे तो आवर कैंसिल हो गया तो ऊपर किलोवाट है, नीचे 30 मेगावाट आपको दिया गया है. तो मेगावाट को आपको क्या करना पड़ेगा?
किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेगावाट को अगर आप किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पर आप 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से आपको मिल रहा है। तो यहां से आप लोड फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करें तो ये लोड फैक्टर आपको मिलेगा, यहां पर देखिए लोड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0.234। So load factor will be equal to 0.234. So you got the answer of both the questions. First is demand factor, second one is load factor. So this is the solution of first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख लिया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट अस सी व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। See the second question. In the second question it is given that a captive power plant. Captive power plant का मतलब क्या होता है कि ऐसा पावर प्लांट जो इंडस्ट्री खुद सेटअप करती है और वो खुद उसका यूटिलाइज करती है। A captive power plant feeds 4 load clusters having peak loads of 500 किलोवाट। यहां पर दिया गया है कैप्टिव पावर प्लांट है जो कि 4 क्लस्टर्स को लोड सप्लाई कर रहा है और चारों क्लस्टर्स का पीक लोड क्या है 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 2000 किलोवाट एंड 4000 किलोवाट। डाइवर्सिटी फैक्टर यहां पर दिया गया है प्लांट का 1.5 और एनुअल फैक्टर इज गिवन 60% दैट इज 0.6। नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी सप्लाइड। तो यहां पर हम पीक लोड्स देखें, जो पीक लोड दिया गया है पीक लोड्स। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो पीक लोड्स क्या क्या दिया गया है 500 किलोवाट, दूसरा दिया गया है 1000 किलोवाट, तीसरा 2000 एंड 4000 किलोवाट आपको दिया गया है पीक लोड्स। और यहां पर आपको डाइवर्सिटी फैक्टर दिया गया है 1.5। तो आपको पता करना है मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन। तो अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला लगाएं तो डाइवर्सिटी फैक्टर का अगर हम फॉर्मूला लिखें, जो पहला आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर को अगर आप लिखें यहां पर तो डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ individual peak loads divided by maximum demand। तो यहां से अगर हमें मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करना हो, जो कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पीक लोड्स डिवाइडेड बाय डाइवर्सिटी factor. So from here you will write maximum demand, it will be equal to sum of individual peak loads। तो individual peak loads को अगर आप सम करें 500 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 4000, 500 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय डाइवर्सिटी फैक्टर इज गिवन 1.5। डाइवर्सिटी फैक्टर इज गिवन 1.5। तो यहां से अगर आप आंसर लिखें डायरेक्ट तो फ्रॉम हियर द आंसर विल बी, यहां पर देखिए ऊपर सम करेंगे 7500 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1.5। तो यहां से क्या मिलेगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट 5000 किलोवाट। तो यहां से आपको मैक्सिमम डिमांड क्या मिला इस प्लांट का 5000 किलोवाट। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाइड को किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, यू हैव टू फाइंड द एनर्जी सप्लाइड पर ईयर। तो एक साल का आप एनर्जी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाइड को जब आप कैलकुलेट करें
तो एनर्जी सप्लाइड क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम, यहां पर आप देख सकते हैं एनर्जी सप्लाइड को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या दिया गया है, दूसरा चीज दिया गया है एनुअल लोड फैक्टर। सेकेंड चीज आपको दिया गया है यहां पर एनुअल लोड फैक्टर। तो एनुअल लोड फैक्टर का अगर फॉर्मूला आप लिखें, एनुअल लोड फैक्टर, एनुअल लोड फैक्टर क्या होता है, जो एक साल का लोड फैक्टर है। तो एनुअल लोड फैक्टर का अगर आप फॉर्मूला देखें यहां पर एनुअल लोड फैक्टर, तो एनुअल लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड पर ईयर, क्योंकि होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एनर्जी सप्लाइड पर ईयर, एनर्जी सप्लाइड पर ईयर होगा डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम डिमांड इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, एक साल में टोटल कितने आवर्स होते हैं, एक साल में टोटल 8760 आवर्स होता है। तो यहां से जब हम एनर्जी सप्लाइड को कैलकुलेट करें, फ्रॉम हियर व्हेन यू कैलकुलेट एनर्जी सप्लाइड, तो एनर्जी सप्लाइड क्या मिलेगा, एनर्जी सप्लाइड विल बी इक्वल टू एनुअल लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड इंटू 8760। तो एनुअल लोड फैक्टर दिया गया 60%, दैट इज 0.6 इंटू मैक्सिमम डिमांड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डिमांड क्या दिया गया है आपको, मैक्सिमम डिमांड आपने कैलकुलेट किया था 5000 किलोवाट इंटू, दूसरा आप यहां से देखें इंटू 8760, तो यहां पर एनर्जी सप्लाइड आपको यहां से मिलेगा टोटल 262.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोवाट आवर। फ्रॉम हियर यू गेट एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू 262.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोवाट आवर। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें तो देखिए दिया हुआ, ए हाइड्रो प्लांट सप्लाइज पावर ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। एक हाइड्रो प्लांट है वो अलग अलग कैटेगरी के कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई कर रहा है। यहां पर देखिए कैटेगरी के कंज्यूमर्स क्या है, डोमेस्टिक कंज्यूमर को 50 किलोवाट का लोड है, कमर्शियल कंज्यूमर का 200 किलोवाट का लोड है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज ए लोड ऑफ 1000 किलोवाट, agricultural consumer has a load of 750 kilowatt. Now it is given that if maximum demand on plant is 1500 kilowatt, अगर maximum demand plant का 1500 kilowatt है and the unit generated per year is 20 into 10 to the power 5 और यूनिट एक साल में एनर्जी जनरेट किया गया है 20 into 10 to the power 5, then you have to find diversity factor and annual load फैक्टर। तो यहां पर किस तरह से सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को, आप देखिए दिया गया है कि फॉलोइंग कैटेगरीज के कंज्यूमर्स को, अलग अलग कंज्यूमर्स की पावर रेटिंग क्या है वो आप सबसे पहले नोट कीजिए, 50 किलोवाट, देन यू हैव 200 किलोवाट, देन 1000 किलोवाट, देन 750 किलोवाट, देन यू हैव 750 किलोवाट। ये चार अलग अलग कंज्यूमर्स हैं। मैक्सिमम डिमांड दिया गया है 1500 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड इज 1500 किलोवाट। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, डाइवर्सिटी फैक्टर, तो डाइवर्सिटी फैक्टर को देखें फिर से वही होगा, इंडिविजुअल पीक लोड्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो इंडिविजुअल पीक लोड्स अगर आप कैलकुलेट करें, पहला पीक लोड क्या है 50 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 750 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड है 1500 किलोवाट। तो यहां पर अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 1000 प्लस, तो यहां से आपको मिलेगा
2000 डिवाइडेड बाय 1500, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपको मिलेगा डाइवर्सिटी फैक्टर 1.33। सो यू गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डाइवर्सिटी फैक्टर आपको मिल चुका है यहां पर 1.33। अब नेक्स्ट जो दूसरा आपको कैलकुलेट करना है, सेकेंड पार्ट है, देन यू हैव टू कैलकुलेट एनुअल लोड फैक्टर। तो एनुअल लोड फैक्टर को अगर हम कैलकुलेट करें तो एनुअल लोड फैक्टर विल बी इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पर एवरेज लोड तो नहीं दिया हुआ है, हमें दिया गया है एक साल में जो एनर्जी जनरेट किया गया है वो एनर्जी जनरेशन है 20 इंटू 10 टू द पावर 5 यूनिट्स। तो अगर हम इसे एवरेज लोड में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8760 से, यानी आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे एनुअल लोड फैक्टर, एनुअल लोड फैक्टर विल बी इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड यानी 20 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करेंगे 8760 इंटू यहां पर मैक्सिमम डिमांड क्या है, हमारा मैक्सिमम डिमांड है 1500 किलोवाट। यहां पर हमारा मैक्सिमम डिमांड है 1500 किलोवाट। तो यहां से अगर आप आंसर लिखें तो द आंसर इज 0.1522, 0.1522। यहां से आपको आंसर मिल रहा है 0.1522। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब मैं इस पार्ट को यहां पर मिटा दे रहा हूं और यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज गिवन दैट ए पावर प्लांट हैज फॉलोइंग डेली लोड साइकिल। इट इज गिवन दैट ए पावर प्लांट हैज फॉलोइंग डेली लोड साइकिल। तो डेली लोड साइकिल क्या दिया गया है, देखिए यहां पर ये टाइम को बतला रहा है ये रो, और सेकेंड रो आपको बतला रहा है लोड को इन मेगावाट। तो फ्रॉम 0 to 6 आवर्स 20 मेगावाट ऑफ लोड इज कनेक्टेड, 6 to 10 hours 40 megawatt of load is connected. Next 10 to 12 hours 50 megawatt load is connected. 12 to 16 45 megawatt load is connected. Between 16 to 20 hours 70 megawatt of load is connected, and between 20 to 24 hours 50 megawatt of load is connected. तो फर्स्ट इट इज रिटन दैट ड्रॉ द लोड कर्व। तो इस लोड कर्व को क्या कहा जाएगा, इस लोड कर्व को कहा जाएगा लोड ड्यूरेशन कर्व। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो लोड ड्यूरेशन कर्व किसके वर्सेस ड्रॉ किया जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम रहेगा और वर्टिकल एक्सिस पर क्या रहेगा, वर्टिकल एक्सिस पर लोड इन मेगावाट रहेगा। तो टाइम को किस तरह से डिवाइड करना है, 0 to 24 आवर्स के बीच में। ये आपका 0 है, दिस विल बी 24 आवर्स, ये हमारा होगा 12 आवर्स, दिस विल बी 6 आवर्स, और ये नेक्स्ट कहा जा रहा है। तो यहां पर देखिए 0 6 10 आवर्स, इसके बीच में कहीं आएगा यहां पर, दिस इज 10 आवर्स। इसके बाद ये 12 आवर्स हो चुका है, 12 to 16, ये होगा हमारा 16, ये होगा 20 और ये होगा 24 आवर्स। अब लोड की बात की जा रही है, तो यहां पर देखिए लोड का वेरिएशन 20 40 50 45 70 50 यानी मैक्सिमम 70 मेगावाट तक का लोड गया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहां से 0 मेगावाट जो वर्टिकल एक्सिस लेंगे इसे लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70, दिस इज 80 मेगावाट। तो इस तरह से हमारा वर्टिकल एक्सिस मेगावाट लोड का हो गया। अब हम लोग देखते हैं पहला 0 to 6 आवर, और फर्स्ट 0 to 6 आवर्स, इसमें लोड क्या है 20 मेगावाट। तो यहां पर क्या आएगा ग्राफ, ये देखिए 20 मेगावाट का लोड है फर्स्ट 0 to 6 आवर्स, तो कर्व यहां तक आएगा।
सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम 6 to 10 आवर्स, 6 to 10 आवर्स द लोड इज 40 मेगावाट। तो क्या होगा यहां पर 20 से 40 चला जाएगा, ये रहा हमारा 6 to 10 आवर्स। अब 10 to 12 आवर्स अगर हम जाएं तो वहां पर 50 मेगावाट होता है। तो ये 50 मेगावाट का लोड कहां है, ये है हमारा 50 मेगावाट, ये हमारा 50 मेगावाट 10 to 12 आवर्स। नेक्स्ट फ्रॉम 12 to 16 आवर्स द लोड इज 45 मेगावाट। तो 45 का मतलब 40 और 50 के बीच में होगा, तो यहां पर ये लोड रिड्यूस हुआ और दिस इज योर 45 मेगावाट। तो ये रहा बिटवीन 12 to 16 आवर्स। नेक्स्ट इज 16 to 20 आवर्स द लोड इज 70 मेगावाट। तो 70 मेगावाट यानी लोड आपका इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ 70 मेगावाट। ये रहा लेवल 70 मेगावाट का। और फ्रॉम 20 to 24 आवर्स अगेन द लोड इज 50 मेगावाट्स। तो 50 मेगावाट्स यानी ये लोड हमें मिल रहा है नेक्स्ट। So this is called load duration curve. This is the load duration curve. Now we have to answer 4 questions here. The first question is you have to write maximum demand. What is the value of maximum demand? तो मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, इस लोड ड्यूरेशन कर्व में जो सबसे हाईएस्ट लोड है दैट विल बी योर मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम डिमांड। तो हियर द हाईएस्ट लोड इज 70 मेगावाट। तो अब पहला आंसर हुआ आपका 70 मेगावाट। फर्स्ट आंसर इज 70 मेगावाट। सेकेंड आंसर, सेकेंड देखिए पार्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी जनरेटेड पर डे। एनर्जी जनरेटेड पर डे। तो एनर्जी जनरेटेड पर डे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कल मैंने आपको बतलाया था कि लोड कर्व का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। दैट एरिया विल बी नथिंग बट एनर्जी जनरेटेड, बिकॉज एनर्जी इज नथिंग बट किलोवाट इनटू आवर। तो यहां पर वर्टिकल एक्सिस में मेगावाट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम दिया गया है, यानी इसका इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के साथ। तो क्या करेंगे, आप इस एरिया को अगर हम टोटल इस एरिया को कैलकुलेट कर लें तो ये एरिया हमें क्या देगा, यही एरिया हमारा क्या होगा टोटल, द टोटल एरिया विल बी द एनर्जी जनरेटेड पर डे। आपको ध्यान में रखना है कि वर्टिकल एक्सिस मेगावाट का है, तो लास्ट में 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट इनटू आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द लोड कर्व, इट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द लोड कर्व। तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट अलग अलग रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो पहला रेक्टेंगल देखिए, इसकी लंबाई है 6 और ये हाइट है 20। तो पहला होगा हमारा 20 इंटू 6 प्लस, दूसरा हम कैलकुलेट करें, दूसरा होगा 40, दूसरा होगा 40 इंटू ये वेट क्या होगा यहाँ पर, इस वेट को ध्यान से देखिए, ये 40 किसके बीच में स्प्रेड है, 6 to 10 आवर्स के बीच में। तो वेट क्या होगा 10 माइनस 6 यानी 4 प्लस थर्ड वन इज 50 और यहां पर विड्थ है 2 प्लस 50 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट है हमारा, यहां से भी हम इस ग्राफ से भी लिख सकते हैं एरिया, इस जो टेबल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 12 to 16 आवर्स के बीच में 45 मेगावाट प्लस 45 इंटू 4 प्लस नेक्स्ट इज 70 मेगावाट का लोड है, कितने देर के लिए, 4 आवर्स के लिए है, 16 to 20 प्लस 50 इंटू 4। और इन सब के साथ क्या करना पड़ेगा, ये आपका मेगावाट आवर में आएगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, राइट द आंसर इन किलोवाट आवर, हेंस यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 to the power 3। तो फ्रॉम हियर जो आपको एनर्जी जनरेट, टोटल एनर्जी मिल रहा है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 43.3। यहां पर जो एनर्जी मिल रहा है हमें, दिस एनर्जी वैल्यू इज 1040 इंटू 10 to the power 3 किलोवाट आवर। हियर द आंसर इज 1040 इंटू 10 to the power 3 किलोवाट आवर। नेक्स्ट तीसरा पूछा जा रहा है एवरेज लोड, यानी एवरेज डिमांड क्या है। तो तीसरा अगर एवरेज लोड या एवरेज डिमांड आप देखें, एवरेज लोड, तो एवरेज लोड क्या होता है,
एवरेज लोड अगर आपको एनर्जी मिल चुका है 24 आवर्स का, तो 24 आवर्स का एनर्जी को क्या करेंगे, इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका एवरेज लोड हो जाएगा। 1040 into 10 to the power 3 divided by 24. So from here you get it is equal to 43.3 into 10 to the power 3 kilowatt। 43.3 into 10 to the power 3 किलोवाट ये हमारा एवरेज लोड रहा। नेक्स्ट चौथा आपको कैलकुलेट करना है लोड फैक्टर। फोर्थ यू हैव टू कैलकुलेट लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर के लिए क्या होता है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड क्या है, यही हमारा एवरेज लोड है 43.3 into 10 to the power 3 किलोवाट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड हमने देखा था 70 मेगावाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power 3 किलोवाट। तो फ्रॉम हियर द आंसर इज 0.619। तो यहां पर हमने आज टोटल 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किया। आपको इसी पैटर्न पर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चंस इस टॉपिक पर, इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन पर मैं डिस्कस करूंगा।